मेरी शक्ति आयु शक्ति, मेरी शक्ति आयु शक्ति। मेरी शक्ति आयु शक्ति में आपका स्वागत है। Welcome to मेरी शक्ति आयु शक्ति. Ayu Shakti is the power to have your health in your hands. Ayurveda's amazing Shakti is Ayu Shakti, and I'm very excited to say that all the way from Mumbai, India, we have with us Vidya Smita Naram. नमस्ते। आइए जानिए विद्या स्मिता नरम के बारे। डॉक्टर स्मिता नरम जी इंडिया सहित यूएसए, यूरोप में चिकित्सा में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आज से ही नहीं बल्कि 27 सालों से वो लोगों को अपने क्लिनिक आयु शक्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करती आ रही हैं। इन्हीं कार्य की वजह से उन्हें काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पश्चिमी देशों में 60 से भी ज्यादा डॉक्टरों को नाड़ी क्रिया में शिक्षित कर चुकी हैं। 27 सालों के दरमियान पुराना दर्द, हैवी ब्रेथलेसनेस और वंश को आगे बढ़ाने में सहायता की है। डॉक्टर स्मिता नरम जी बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। We are also joined today by Vidya Meera Doshi. नमस्ते। Vidya Meera Doshi has been personally trained with Vidya Smita Naram in Ayu Shakti in 2005. She has a master's degree from here in the UK and has been practicing Ayurveda for over 10 years. हम psoriasis में बारे बात करेंगे. It has become more common that people are suffering from psoriasis, which is a skin disorder causing severe irritation to the skin. Let us watch a video from Vyacheslav from Russia, who conquered both chronic asthma and psoriasis with Ayu Shakti. Добрый день, меня зовут Владислав, я из России. Hello, good afternoon. My name is Vladislav. I came from Russia. В клинике я второй раз. Первый раз я был в прошлом году. This is my second time in this clinic. Last year I came also. Я очень остался доволен результатом лечения прошлого года. I was very satisfied from the result I received from Panchakarma I got last year. В прошлом году у меня были проблемы одышка, псориаз, местами, как это называется, не псориаз? Eczema. Экзема. Last year I had some problems with the health, like I had breathlessness, also some psoriasis, like eczema spots on my body. Большой вес. Extra weight, overweight. В прошлом году у меня ушли вот эти вот одышки, слизь, проблемы с кожей. Last year, I got very good results on skin problems, so it's gone. Also, problem with breathlessness, gone. And spots, eczema spots from the body also gone. В прошлом году я похудел на 13 килограмм. I lost 13 kg last year. Just very good results for 4 weeks. Ну и в этом году я продолжаю курс лечения в клинике Аю Шакти. This year, I continue the treatment that I started last year. Результатом я очень доволен. I'm very satisfied with the result I'm getting. Я чувствую себя гораздо лучше, легче. I feel much more better and lighter. Vidya Smita, how does Ayu Shakti help with psoriasis? सो बेसिकली सोराइसिस जो है वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाती है और वो हमारे ही सेल्स को अटैक करने लगती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशंस, इरिटेशन पैदा होते हैं। तो किसी किसी को 2-3 ऑर्गन्स को भी अटैक करने लगती है, जैसे कि ये जो वाजिस्लाव है उसको पहले बचपन से
ब्रीदिंग यानी लंग्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आया, और उसके बाद जो है कि उसे स्किन पे सोराइसिस के तौर पे ऑटो इम्यून का इफ़ेक्ट आ गया। किसी किसी को सोराइसिस के साथ आर्थराइटिस भी हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इम्यून सिस्टम को हम बैलेंस करें पहले, और उसकी जिस शरीर पे जिस टिश्यू पे इफ़ेक्ट है उस टिश्यू को हम ठीक और रिपेयर करने के लिए उस प्रकार की डाइट और होम रेमेडीज़ और हर्बल फार्मूलाज दे। तो उसकी वजह से जो है कि धीरे धीरे लंबे अरसे के बाद ये बीमारियां जो है वो काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ मिलती है, उसके लक्षण कम हो जाते हैं, प्रैक्टिकली रेमिशन यानी कि ये लक्षण बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनको लाइफ टाइम इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक प्रकार के होम रेमेडीज ऑफ डाइट का पालन करते ही रहना पड़ता है। और मैंने देखा है कि आयुर्वेद में इसके बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट है। 2-3 साल तक कंटिन्यूअस यदि कोई सिंसियरली कुछ करे तो इसकी जो हमारी जो स्किनोटॉक्स प्रोग्राम है आयुष शक्ति का, जो 27 साल से हमने एक अनुभव के निचोड़ के तौर पे बनाया हुआ है, केवल स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा, एक्नी, अर्टिकेरिया, सोराइसिस वगैरह के लिए, वो हम देते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक डाइट, लाइफस्टाइल और होम रेमेडी, हर्बल फॉर्मूलाज और डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, सो स्किनोटॉक्स का डाइट क्या होता है विद्या मेरा? इसमें ऐसा होता है सिमरन कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें खाने से वो हमारा सोराइसिस बढ़ेगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल से बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि खट्टा और हेवी फूड, रेड मीट, वीट तो बहुत ही ख़राब असर होता है बॉडी में। और दूसरी एक बात है, जो इनकम्पेटेबल फूड है, जो कॉम्बिनेशन जो बिल्कुल ही बॉडी के पूरे बॉडी को बिगाड़ देता है, वो है दूध के साथ, डेयरी के साथ फ्रूट मिलाना, खट्टा मिलाना कुछ भी, और फिश और मिल्क का कॉम्बिनेशन। ये सब चीज़ें बहुत ही ख़राब करती है बॉडी को। आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं कि अगर पॉइजन खा लिया तो बॉडी शायद उसका कुछ इलाज कर सकती है, लेकिन ये इनकॉम्पिटेबल फूड से इतना नुकसान होता है कि वो बहुत ही ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ऐसा खट्टा भी नहीं खाना है, नींबू, टमाटर, इमली, ये सब चीज़ें। फिर अंडे भी नहीं लेने हैं, मूंगफली, बैंगन जो वायु बढ़ाता है वो चीज़ें भी नहीं खाना है। जैसे कि वायु बढ़ने से सोराइसिस फैल जाता है पूरे बॉडी में, तो ये भी नहीं चीज़ें खानी है। और हैवी फूड यानी कि फ्राइड फूड और हैवी पल्सेस एंड लेग्यूम्स जैसे चने और राजमा और ये चीज़ें, इससे भी वायु बढ़ता है, तो इससे फैल जाएगा सोराइसिस। तो ये भी चीज़ें नहीं खानी है। हल्का फूड खाना है, और हल्के वेजिटेबल्स जैसे कि दूधी, तुरई, टेंडली और स्क्वॉशेस, पम्पकिन, कुर्जेट, ये सब चीज़ें लेने से वो पेट को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, पचने में हल्के होते हैं और नरिशमेंट भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें खानी है। गेहूं की जगह आप मिलेट ले सकते हैं, ज्वारी, फिर बाजरा, नाचनी, ये सब चीज़ें की रोटी बनाएं तो हल्का होगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर स्मिता नरम हमेशा से कहती है कि वेजिटेबल्स को खाओ, तो ये इसके पर ज़्यादा ध्यान देना, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। So, इसी में कोई होम रेमेडीज हो सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ है, लेकिन उससे पहले दर्शकों एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि सोराइसिस में डाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको वैद्य मीरा ने बताया ऑलरेडी। कभी भी लोग खट्टा खाएंगे तो उससे तुरंत पस और स्किन फट जानी और ऊजिंग होने लगेगा। कभी भी स्किन प्रॉब्लम में आप मीठी चीज़ें या मीठे फल खाएंगे तो इचिंग हो जाएगी, और दूध लेंगे तो इचिंग होगी, और गेहूँ, रेड मीट और फर्मेंटेड खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और बम्स आएंगे। तो ये खास ध्यान में रखिए, किसी को भी तकलीफ हो स्किन की, कभी भी ये चीज़ खाएंगे तो ये रिएक्शन होगा ही तुरंत। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए
ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए और हीट हमारे शरीर से कम हो जाए, उसके लिए ये स्पेसिफिक होम रेमेडीज़ आप रोज़ कीजिए। उसमें आपको लेना है 1 चम्मच कोरिएंडर सीड पाउडर, 1 चम्मच धनिए का चूर्ण, आधा चम्मच सौंफ का चूर्ण, हाफ टी स्पून फेनल सीड पाउडर, 1 चम्मच ऑर्गेनिक टर्मरिक यानी ऑर्गेनिक हल्दी का चूर्ण, 1 चम्मच गुड़ूची का चूर्ण और 1 चम्मच नीम का चूर्ण। ये मिक्सर जो है ये सारा आपको दिन में 2 से 4 बार लेना है और रेगुलरली लेते रहिए। आप लाइफ टाइम तक लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी और इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी और कुछ लेने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। वैद्य स्मिता, ये स्किन डिटॉक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? सो बेसिकली सिमरन, ये जो पुरानी तकलीफ़ें होती है उसे एकदम जड़ से निकालने के लिए अंदर जो सालों से टॉक्सिन्स भरे पड़े हुए हमारे टिश्यूज़ के अंदर, उसे लूजन अप करके उसे एक परगेशन वगैरह प्रोसेस के द्वारा शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं। पित्त के जो हॉट टॉक्सिन्स है उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम एक स्पेशल प्रकार की बस्ती करके उस टिश्यू को वापस रिपेयर करते हैं ताकि वो एकदम नए हो जाए और उसमें जो नुकसान हुआ है वो रिपेयर हो करके फ्रेश स्किन आने लगे शरीर में। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, 3-4 हफ्ते की प्रोसेस होती है, लेकिन उसके लिए वैद्य के निगरानी में करना पड़ता है। तो या आप बॉम्बे में या गोवा में आ जाए, जर्मनी जाए या बैंकॉक जाए, ये 4 जगह हमारे आयुष शक्ति के क्लिनिक्स है जहाँ आप रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे क्लिनिक्स अराउंड द वर्ल्ड है। यूके में भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जो फुल फ्लेज डिटॉक्स करते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। बट उसके अलावा घर पे रोज़ 2 चम्मच त्रिफला लेने से एटलीस्ट गर्म टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे। तो ये एक होम डिटॉक्स आप कर सकते हैं रेगुलरली। आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स में बारे ईमेल कर सकते हो at info@ayushakti.co.uk and one of our Vedyas will reply back to you. आप आयुष शक्ति के प्रैक्टिशनर्स को भी मिल सकते हैं यूके में, and you can call us on 0208 144 4374 or visit our website www.ayushakti.co.uk. फिर मिलेंगे मेरी शक्ति आयुष शक्ति में every Sunday, this time only on MATV. Stay tuned for Vidya Smita Naram's Fatafat Tips. ये सेगमेंट में जैसे मैंने आपको वचन दिया था कि आप ही के किचन में से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना ताकि आपकी छोटी छोटी समस्याएं आप अपने आप ही सुलझा सके, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगी लहसुन के बारे में। लहसुन यानी गार्लिक जो थोड़ा सा गर्म है, यानी कि वायु और कफ की बीमारियों को कम करता है, लेकिन जो एसिडिटी या पित्त की बीमारियां हैं वो लहसुन से थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस जो है वो एक और आंव से हुई एक ब्लॉकेज की बीमारी है सर्कुलेशन में, और दूसरी ओर थोड़ा सा उसमें वायु भी है। तो मेरे पास 15 साल पहले की बात है एक्चुअली, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे फार्मासिस्ट काम करते थे, काफ़ी साइंटिफिक माइंडेड थे बेसिकली, तो क्योंकि फार्मासिस्ट थे तो उनको यानी एलोपैथिक में तो बहुत ही विश्वास था ऑफ कोर्स। तो फिर एक दिन अचानक से उनको रात को सोए तो सुबह उठे तो माइल्ड पैरालिसिस का अटैक आ गया, यानी कि मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उनकी राइट साइड है वो स्लाइटली पैरालाइज्ड हो गई थी। तो 2 दिन उन्होंने डॉक्टर के पास गए, दवाई की, वो जो क्लॉट पिघालने की कुछ दवाई ली वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन जो इफ़ेक्ट थी वो रह गई थी। तो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए और साथ में लहसुन का प्रयोग कीजिए जो आपके घर में ही है, मैंने बताया। और मैंने ये भी बोला कि आपको 2-3 महीने में ही इससे फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन लहसुन आपको ज़िंदगी भर कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये भाई साहब जो थे मिस्टर हेमंत शर्मा, उनका एक तो पेट इतना बड़ा था, यानी कि वो पहले से ही आंव से पूरे भरे हुए थे, आयुर्वेद में जिसे आंव बोलते हैं टॉक्सिन्स, उससे भरे हुए थे। उनको डायबिटीज़
और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों की गोलियां खा रहे थे और खाने पीने में उनको कोई डाइट करने की कोई आदत नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि आप सेफ रहेंगे। उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जैसे ही अटैक की थोड़ी सी असर हुई थी और हमारे पास आए थे, उनको 2-3 महीने में ही ये प्रयोग करने से प्रैक्टिकली टोटल पैरालिसिस की इफ़ेक्ट चली गई थी। और आज 15 साल हो गए, ये लहसुन का जो प्रयोग है वो आज भी कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, यदि किसी को पैरालिसिस पुराना हो या अभी अभी हुआ हो, ये लहसुन का प्रयोग रोज़ करते रहने से उसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, धीरे धीरे उसकी मोबिलिटी सुधरते जाएगी। तो इसमें आपको लेना है क्रश करके पाव चम्मच लहसुन की पेस्ट, सिर्फ पाव चम्मच लहसुन की पेस्ट। उसमें यदि मिल पाए तो प्योर बटर, तो और किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो बटर नहीं डालिएगा, उसकी जगह आप उसमें फ्लैक्सीड ऑयल डालिएगा या घी डालिए। घी से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घी बनाने की प्रक्रिया में बाहर निकल जाता है। जो नीचे बच जाता है घी बनाने के टाइम, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो घी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी है, इसलिए वो हमारे लिए अच्छा है। तो घी डाल सकते हैं आप पाव चम्मच, और यदि डायबिटीज़ ना हो तो जैगरी या तो मिश्री पाव चम्मच। ये सारी चीज़ मिला करके भूखे पेट सुबह सुबह उठ के ले लेना है। आधे घंटे तक कुछ नाश्ता नहीं करना, बाद में आप जो चाहे वो खा सकते हैं। और इस तरीके से रोज़ ही करते रहिए, हमेशा करते ही रहिए, ताकि कभी भी इस प्रकार की तकलीफ़ें हो नहीं। तो ये जो फटाफट टिप मैंने आज आपसे शेयर की है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने बहुत लोगों पे आजमाई है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें और आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, यही मेरी मनोकामना है। फिर मिलेंगे मेरी शक्ति आयुष शक्ति में। नमस्कार।